Hello students, let's see example 5.6. See figure 5.8. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown in the figure. What is the angle the rope makes with the vertical in a equilibrium? Take G is equal to 10 meter per second square and neglect the mass of the rope. So over here you guys have to remember that here we are neglecting the mass of rope, okay, and a force of 50 Newton is applied at the midpoint over here. Total length of this rope, okay, from point of suspension to the point at which a block is suspended, okay, is 2 meter, and the 50 Newton force is as acting at a midpoint. So here I can say the length of rope above this midpoint, this length, okay, must be 1 meter, and the length below the midpoint P is also 1 meter, okay. Here you can see that 50 Newton force is acting in this direction, okay. So here we know that due to this suspension of 6 kg weight as well as due to this 50 Newton force, tension force must be present in a string, because string experiences a, or you can say rope experiences a tension, okay. इसमें तनाव होगा, तनाव है मतलब क्या है, टेंशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो स्ट्रिंग का जो पार्ट, ठीक है, मतलब मिड पॉइंट पी है, उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो और नीचे वाले पार्ट में दोनों में डिफरेंट टेंशन होगा। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी दैट अ 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, ओके। तो ये वाले हिस्से में और ये वाले हिस्से में जो टेंशन लग रहा है वो सेम नहीं होगा। अगर ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है टेंशन T1 लिया है, और नीचे वाले हिस्से में ले लेते हैं कि ये टेंशन ये पार्ट में जो है वो कितना है, T2 है। जैसे हमने आगे डिस्कस किया था दैट कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स वाले लेक्चर में, ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रेजेंट होता है तो वो टेंशन की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे which is very helpful to solve such examples, okay. But the question is what is free body diagram? FBD stands for what? Free body diagram. So here FBD is, I can say, it is the graphical representation of magnitude and direction of forces acting on any object, or you can say acting on any point in a given situation. So once again, FBD is what? It is the graphical representation, you can say, or it is the FBD is, you can say, representation of magnitude and direction of forces acting on an object in a given situation, in a given situation at a given time. So here we have to represent the magnitude and the direction of forces acting on the object, and that is called what? Free body diagram. So let us draw free body diagram, okay, of this 6 kg mass. So here you can see that it is the block of 6 kg mass, okay. So here I can say according to second law of motion, F is equal to ma. Due to its mass, a gravitational force in a downward direction acting on it, okay, and that gravitational force acting on an object due to gravity is nothing but we know that it is a weight of that object. इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना होता है ड्यू टू ग्रेविटी g। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को मैं यहाँ पे इसके सेंटर से रिप्रेजेंट करता हूँ, कितना होगा mg, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात की हमने कि जैसे कि ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, T2 होगा, और हमने आगे लेक्चर में देखा था कि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ पे होती है। अब जो भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉक का ड्रॉ कर, ठीक है,
तो उसमें आउटवर्ड इन स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो ये आउटवर्ड स्ट्रिंग में आउटवर्ड, इससे आउटवर्ड स्ट्रिंग में, और अब हमने कितना लिया है यहाँ पे T2 लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलता है, क्या मिलता है, T2 इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू है हमारे पास 6 kg, ठीक है, और g की वैल्यू हम लोग यहाँ पे हमें बोला है कि 10 लेंगे, तो ये कितना होगा 60 न्यूटन, ठीक है। चलो अब और कहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, ये P पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ये P पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलो तो ये P पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं P पॉइंट का, तो उसमें देखो दो स्ट्रिंग उसके साथ कनेक्ट है, दो पार्ट कनेक्ट है ये रोप के, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट में हमने टेंशन कंसीडर किया T1, जैसे कि हमने बताया ये टेंशन वर्टिकल के साथ ऐसे आउटवर्ड लेंगे हम लोग स्ट्रिंग में, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और नीचे वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा, उसमें टेंशन T2 है, ठीक है। चलो तो ये T2, ये T1 की डायरेक्शन है, ये T2 की डायरेक्शन है, ठीक है। चलो तो ये हो गया T2, यहाँ से आउटवर्ड लेंगे। अब बच्चों डाउट यहाँ पे ये होना चाहिए कि सर यहाँ पे T2 आउटवर्ड था, यहाँ पे T2 आउटवर्ड है, तो मैंने आपको एक कॉमन पॉइंट बताया है, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ पे लेनी है, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज आप जो बॉडी का FBD बना रहे हो, ठीक है, उसमें आउटवर्ड लेनी है, वो भी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रिंग में आउटवर्ड ऐसे होगा, अगर ये पॉइंट का FBD बना रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे जाएगी, वो भी स्ट्रिंग में, ठीक है। और टेंशन T1 ये पार्ट का गिनोगे, ठीक है, अपर पार्ट का, रोप के अपर पार्ट का, तो ऐसे आउटवर्ड जाएगा स्ट्रिंग में। अब देखो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये T1 है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो T1 जो फोर्स है उसका यहाँ पे कंपोनेंट निकलेगा, हमें पता है जिसके साथ थीटा बनाता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस होता है, तो वो क्या होगा T1 कॉस थीटा होगा, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट निकलेगा T1 का, ठीक है, वो कितना होगा, अब देखो यहाँ पे थीटा बनाया वो कॉस कंपोनेंट है, तो दूसरा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, T1 साइन थीटा होगा, ठीक है। चलो ये T2 की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2 लग रहा है, और उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 60 न्यूटन है, ठीक है। चलो तो यहाँ से मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50, ओके। और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला है ये इक्विलिब्रियम में, तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 एंड दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन, सो आई कैन से T1 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 60 न्यूटन, ओके। लेट इट बी इक्वेशन 1 and equation number 2. Taking ratio of equation 1 and 2, यहाँ पे 1 and 2 का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो T1 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपन कॉस यहाँ पे कितना होगा tan थीटा LHS में, और RHS में क्या होगा 50/60 मीन्स 5/6, so here I can say theta is equal to what, tan इनवर्स 5/6, ओके। चलो तो इसकी वैल्यू लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट वाले सेक्शन में आप देखोगे तो थीटा आपको मिलेगा 40 डिग्री, सो हियर आई कैन से rope makes an angle 40 degree with a vertical, okay।